Good evening, everybody. Sorry, I'm very sorry. मैं बिना check किए ही class में घुस गया, and I'm very sorry. So actually, what I was saying is कि हम एक तरह का swing trading setup देख रहे हैं. हमारे पास what type के we do have too many candlestick patterns. One is the normal candlestick, Japanese candlesticks. Then we have Renko charts, we have Heikinashi, we have line charts. Then figure chart, we have a lot of charts. इनके सबके अपने advantages and disadvantages. Somebody can confirm in the chat boxes now the volume is there. Okay, fine, it's there. So this strategy was taught to me by one of my mentors, and I practiced it on, and we do a lot of. I keep on doing a lot of things on it also. Anybody, if you recollect from the previous webinar, I had clearly said for me the bank nifty is about to go up, and मेरा अपना फंडा है, my loss भी अपना होता है, मेरा profit भी अपना होता है. I sometimes buy future, sometimes I short a put on a in the money जाके put short कर दूंगा मैं, आराम से बैठा रहूंगा उसको फिर then because I'm going to do it on a longer term. हमारा horizon जो होना चाहिए, it should depend upon the time frame we are using. If we are using 5 minutes, we should not stay in a trade for more than 15-20 minutes, and that should be our target. We should not think that कि हम 5 मिनट में घुसे और weekly resistance को है. ऐसा बहुत rare होता है. अगर होएगा भी तो it's by an accident. It's never by actually technical skills. You should know your target according to the time frame you are using it. You can use it on anything. I am these days only concentrating on one thing is bank nifty. Right, wrong, whatever I do, I learn from it only. It is the most volatile equipment we have or the instrument we have in the National Stock Exchange. So my whole idea is only on bank nifty. I so keep on doing only bank nifty. Very seldom I do. I have in fact decreased my stocks to even half of it. What I used to do is now IRCTC has also gone out of it. Recently, I have taken Century Textile based on some other technique, but this is so it has come in my watch list. Otherwise, it never comes in my watch list. So the stocks are very limited. Whatever I have is now this is out of all the charting patterns or the candlestick patterns we have. There is one candlestick pattern which is an indicator in itself. And that is the Heikinashi. Because the calculation, we will not go into the details of the calculation, we'll just go and see it. अभी ये normal Japanese candlestick pattern होता है, हम ये up गया, down गया, क्या हुआ, ये बहुत सारी इसमें colors आते हैं और जिससे हम लोग को एक direction नहीं मिलती. Now I just show you, if you convert it into Heikinashi, it looks like कि आपका कोई indicator आपको एक signal दे रहा है that you are going in and you are going out of it. आप ग्रीन पे एंटर कर जाओ, रेड पे बाहर निकल जाओ. अगर आप ऐसा भी कर लो तो देन ऑल्सो यू कैन थिंक कि ओवरऑल इन लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. डोंट गो बाय द हाइज एंड द लोज बिकॉज इनकी कैलकुलेशन प्रीवियस और एक कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करती है. आउट ऑफ ऑल द Heikinashi we have one is known as ये जो indecisive candles होती हैं, जैसे ये रेड वाली है जिसमें एक ऊपर है नीचे जाता है पर ये बीच में बंद होती है, जिसको हम टेक्निकली और जो हमारे लैंग्वेज में हम कहते हैं डोजी कैंडल्स. सो दिस इज अ डोजी Heikinashi कैंडल. सेकंड इज व्हेन वी हैव दिस बुलिश काइंड ऑफ ए कैंडल जिसका लो नीचे होता है, हाई ऊपर है, एक ऊपर डंडी गई हुई है. ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम Heikinashi के ऊपर अब कंसंट्रेट करेंगे. इसमें 7-8 कंसेप्ट्स होते हैं. वील कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू एन Heikinashi इन फ्यूचर ही कैन डू ऑन इट. एक होती है हमारी ये प्योरली बियरिश काइंड ऑफ ए कैंडल जिसका ओपन एंड हाई सेम होता है एंड इट गोज डाउन. एक्चुअली ये जो इनडिसिसिव कैंडल्स होती हैं ये एक तरह का इंडिकेशन होती है कि that now the fight is between the buyer and the seller and the market is now has got confused किस डायरेक्शन में जाना है और हमने इसी चीज को यूज करना है to enter the trade is make it sure that your low and the open in a bullish should be same. उसको देखने का तरीका क्या होता है कि you can have here जैसे इस कैंडल में है आपको ओपन एंड लो में डिफरेंस है, सो इट डजंट सैटिस्फाई ए कंडीशन. यू शुड यूज ये डोजी कैंडल बने और उसके बाद
एक हमने किस साइड करे, द कलर ऑफ द डोजी डजंट मेक ए डिफरेंस वेदर इट्स रेड और ग्रीन. डोजी इज अ डोजी, मतलब लड़ाई चल रही है. अब जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसमें आपने ये देखना है कि अगर ओपन इज इक्वल टू लो एंड इट इज अ ग्रीन, यू शुड थिंक ऑफ बाइंग द थिंग. आप उसको बाय करने के बारे में सोचो एंड यू राइट द ट्रेंड. देन अगर हम मान लो जैसे दिस इज अ डोजी कैंडल, अगर आप यहां पे घुसे होते, कुछ नहीं मोटा मोटा आपको करीब 1000 पॉइंट तो मिल गया होता इन बैंक निफ्टी. Now this I am using it on a weekly chart. It's a very simple thing of way of doing it. Now I will ask you one very simple question. There are how many weeks, how many trading days in a week? 5 is a standard we have. तो हम इसमें घुसे हैं तो एग्जिट हमने कहाँ करना है. हो सकता है कि ये यहाँ पे एक रेड बनाए और उसके बाद फिर ऊपर भाग जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे चला गया. So we should be able to safeguard our profits also. अब किसी कोई अगर यहां देखे, what has happened here? A doji formation and we have a pure bullish candle. So this is an indication that I am going in. मैं मंडे को हल्की सी रिट्रेसमेंट के लिए करना है and I am going to short a put on the top or I will buy a bank nifty future. बड़ा सिंपल है, इसको आप एक सिंपल जो फ्यूचर्स में करते हैं वो दे कैन यूज इट लाइक दिस. पहली बात, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज टेक इट एज एन एजुकेशनल आइडिया. डोंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव इट, बट जब तक मैं कोर्स नहीं कर लेता तब तक मैं आप लोग को ये कोई ऐसे नहीं बोल सकता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन वेरी सिंपल आइडिया ऑन दिस. सो मेरे हिसाब से अब बैंक निफ्टी अगर मैं प्राइस एक्शन भी देखूं तो मेरे हिसाब से यहां जानी चाहिए, जो मोटा मोटा करीब 3000 पॉइंट है, जो मैंने लास्ट टाइम भी वेबिनार में कहा था. मेरे हिसाब से 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी दौड़ेगी. अभी दोबारा मोमेंटम आ रहा है मार्केट में. इट मे सस्टेन, इट मे नॉट सस्टेन, इट मे कम बैक फ्रॉम दिस 41600 का जो लेवल्स है, इस लेवल से वापस भी आ सकती है. आई एम नॉट बॉदर्ड, बट मैं अब जब इस ट्रेंड को लेके चल रहा हूं, सो आई विल बी स्टेइंग इन द ट्रेंड फॉर ए लॉन्गर टाइम. मेरा होराइजन 1-2 दिन से चेंज नहीं होएगा अनलेस मुझे एक एग्जिट का सिग्नल मिले. सो लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट चेकिंग इट आउट कि हमें ये एक्चुअली चलता है कि नहीं चलता है. एक आपका यहां पे सिग्नल है डोजी, आपका मोटा मोटा ट्रेड एक आ गया. इसमें डोंट वरी, इसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे. अब देखो ये थोड़ी चौड़ी है, इट्स नॉट गिविंग अस एन, दिस इज नॉट ए, ये तो बहुत बड़ा कोई ये कैंडल नहीं है हमारे लिए, इसमें ट्रेड बनता नहीं हमारा. इसको भी फिल्टर आउट करने के तरीके बता देते हैं. अब आपका ये बना, बट आपके यहां पे नीचे लो लगा हुआ है, सो दिस इज नॉट एन इंडिकेशन कैंडल. ये भी आपकी मोटे आए, यू कैन लीव इट. वन हेयर योर स्टॉप लॉस सेट, ट्रस्ट मी, यहां स्टॉप लॉस सेट हुआ होगा तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ ट्रेडिंग. यहां डोजी बना बट नीचे नहीं गया, यहां डोजी बना बुलिश कैंडल एंड आपको मोटा मोटा अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया. आप यहां देख रहे हो, नो सिग्नल हेयर, नो सिग्नल हेयर, ए डोजी एंड इट कम्स डाउन. मोटा मोटा 500-600 पॉइंट इज रीजनेबल प्रॉफिट. यहां पे बना ऊपर, अब गया. ये हमारी सिर्फ एंट्री में आपको बता रहा हूं, इट्स नॉट एन एग्जिट वे ऑफ डूइंग इट. एग्जिट के लिए वी विल डू इट. आप इसको डोजी हम तो नहीं मान रहे, तो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट. अगर हम मान रहे हो तो फिर तो हमारा हर जगह रूल हिट होना चाहिए था. नो, लेट्स सी इट. यहां पे क्या था, डोजी बियरिश, और आप 30,000 से 9,000 पॉइंट आए. आई डोंट नो विच मंथ इट इज, दिस इज 2020 कोविड मंथ. अब हम कोविड से पहले आ जाते हैं. डोजी एंड अगेन वी आर गोइंग अप. So this is on a weekly time frame. When you are trying to take a position, जब आप फ्यूचर लेते हो, आप आमतौर पे 2 महीने बाद का लेते हो, so that you are in a safe condition. So this is how you can take a future in bank nifty, nifty, anything you want to take it. Now ये तो हो गया चक्रव्यूह में घुसने की बात. अब चक्रव्यूह से बाहर निकलना कैसे, बिकॉज हमारा पैसा सेफ होना चाहिए. हम ये ना हो कि हम रेड ग्रीन
क्या वेट करते रहे और सडनली हमें पता लगे कि हमारा लॉस हो गया? ये सबका डर होता है. इट्स एवरीबॉडीज फियर. इट इज माय फियर ऑल्सो. मैं कभी कभी गलतियां कर जाता हूँ एंड आई एंड अप पेइंग ए बिग प्राइस फॉर इट. अब मेरे लिए यहाँ पे या तो आई कैन गो एंड बाय फ्यूचर और आई कैन शॉर्ट ए पुट. दोनों कंडीशन में मैंने जो यहाँ पे अभी लिया हुआ है, मैंने उस दिन भी बोला था कि माय प्लान इज आई एम गोइंग टू गो इन व्हाटएवर मे कम बिकॉज दिस इज ए परफेक्ट सेटअप फॉर मी. इसको हम एग्जिट करेंगे बेस्ड ऑन एन इंडिकेटर. वो इंडिकेटर हमें यह बता देगा कि नहीं भाई, आप हो सकते हो इस ट्रेंड में हो. जब आपको रेड मिल जाए तो आप तो एग्जिट कर जाओगे अगर आप यहाँ हो तो. सो यू हैव नॉट रेड. आपने पूरा ट्रेंड नहीं राइट किया. हमने ये पूरा ट्रेंड राइट करना है. जब हमें इंडिकेटर का नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब बाहर निकलो. सो वी विल डू टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी इन दिस काइंड ऑफ ए ट्रेड इज. इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे विच इज देयर इन द फ्री वर्जन. इज द शैंडलर एग्जिट बाय एवरग्रेड. ये फ्रीली अवेलेबल है तो आप इसको यू विल क्लिक इट. सो ये डिफॉल्ट सेटिंग में ही ऐसे आता है. दिस इज अ काइंड ऑफ ए सुपर ट्रेंड बेस्ड सिस्टम. दिस इज बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड सिस्टम. तो मैं इसकी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूं कैसे करते हैं. वन इज, अब देखो इसमें आप यहां पे एंटर कर रहे हो, आपका ग्रीन हो गया एंड यू आर देन स्टेइंग इट. अगर आप ऐसे करो तो आप ये सारे ट्रेंड्स राइड करोगे बट आप निकलते बहुत लेट हो. So we are not going to use 22. 22 practically means 4 weeks. एक मंथली लेवल पे आप पूरे रुके हुए हो, एक मंथ के लेवल पे आप बाहर निकलोगे. तो इसका जरा हम पीरियड जो है ना, इसको कम करके हम कर देंगे एक हफ्ते में हमारे 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं एंड हम मल्टीप्लायर 1 ही कर देंगे अपना. अब सर थोड़ा सा चार्ट क्लीन हुआ हमारा. हमें एक ये एंट्री है, हमें ये एग्जिट है ही नहीं. हमारा एग्जिट यहां आ रहा है. मैं इसका लो लेके चलता हूं 32,400 और मेरी एंट्री कहां है? मैं इसका हाई लेता हूं, हाईएस्ट पॉइंट 24,000. चलो भाई, हो सकता है तुक्का लग गया हो. हम इसका हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं 34,700 और हमारा इसका लोएस्ट पॉइंट है 35,800. मोटा मोटा 1,000 पॉइंट. सेम वे ये आपका सेलिंग कैंडल है, इसका हाईएस्ट पॉइंट लो, आपका स्टॉप लॉस है 2. बट आपके पास यहाँ पे कंडीशन नहीं है एंट्री की. दिस इज ओनली फॉर एन एग्जिट. इसको एंट्री प्लीज मत बनाना. इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो. आप ये क्लोज प्राइस को हटा दो बीच में से. अब आपका चार्ट और क्लीन हो जाएगा. नाउ यू स्टे इन द ट्रेड वेन एवर योर ट्रेड ब्रिंग्स यू इन. आपने इसको एंट्री के लिए यूज करना है. 33,000 34,000 यू कैन टेक इट. आप एग्जिट यहां किए 34,400 पे, 37,400 के पास. आप घुसे कहां थे? 35,600 300 के पास. सेम आपका ये बना, एंट्री कैंडल बनी, आप अंदर गए, आप यहां निकले. अब आप ये देखें, अगर हम इसको एंट्री के लिए यूज करते हैं, ये तो हमारी एंट्री है ही नहीं. दिस इज नॉट आवर एंट्री. ये तो हमारी कैंडल ही नहीं सेटिस्फाई कर रही है. हमने तो यहां पे अपना सेल ट्रेड बनाना है, अगर बनाना भी तो है. और सर आप देखें, अब मैं कैंडल्स बंद करता हूं. इसको मैंने यूज नहीं करना, बट मेरा कन्विक्शन बढ़ाने के लिए बहुत है. मेरी एंट्री आ गई है एंड आई शुड बी नाउ बी ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट अ टारगेट ऑफ, अगर मैं इस लाइन को भी लेके चलूं, दिस इज माय टारगेट, मोटा मोटा 3,000 पॉइंट. इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. इट मे हैपन इन 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, और इट मे इवन रिवर्स एंड कम एंड हिट माय स्टॉप लॉस. कोई बात नहीं. अगर आप करूंगा नहीं तब तक मैं पैसे बनाऊंगा नहीं तो ऐसे ही एक वेबिनार लेते रहो, खत्म करते रहो बातें. So this is what a simple strategy is. Now you can decrease it to even daily. तो आपको डेली के पैटर्न में भी बता देता हूं.
ये आपकी डोजी थी, ये आपकी बुलिश कैंडल थी, आप इसके हाई से मार्क करें तो अभी मोटा मोटा आप 1000 पॉइंट प्लस चल रहे हो। बैंक निफ्टी ने ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड चेंज किया है। तो अब मैं उसको मंथली लेवल पे देखूंगा कि उसने कहां पे अब हरी कैंडल रोकी है। सर लाइन मैंने आपके ये लगाने से पहले बना दी थी, मंथली में वो सेल में आ गया है। अगर आप ये सोचिए यहां पे उसने बुलिश कैंडल बनाई तो हम कितना पॉइंट्स देख रहे हैं। अब यहां से भी देखो 39,900 से टॉप लगाया 44,000, 4,000 पॉइंट का मूवमेंट है। ये वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम हमें एक बहुत देर के बाद एक ट्रेंड दिया है। और आप ये देखो लास्ट ये जो हम लोग को ट्रेंड मिला था दैट वाज इन, जब इसने सेल में आगे थे, एग्जिट हम किए थे, हमने जो लास्ट इसका बाय देखा है वो हमें मिला था अक्टूबर 2022 में। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के बाद हमें बैंक निफ्टी ये बाय का सिग्नल दे रही है। अभी तक बैंक निफ्टी नीचे आ रही थी। अगर इफ इट गोज लाइक दिस तो मैं इसका जो टॉप है, मैं इज माय एक्चुअल मेन टारगेट वेयर आई एम गोइंग टू टारगेट, यहां पे रुकूंगा। सो ये लास्ट 1000 पॉइंट आई विल राइड इट इन अ डिफरेंट वे, बट मैं ये पहले तो ऐसे राइड। So you can decrease the time frame to see on a daily time frame, or whatever thing you want to do is इंडिकेटर हमेशा बंद कर देना व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एन एंट्री, बिकॉज इंडिकेटर आपको बाय दिखा देगा और आप जल्दबाजी में करोगे ही करोगे। यू कैन डू इट ऑन 5 मिनट्स फॉर इंट्राडे। ट्रस्ट मी, इतने वेबसॉट्स मिलेंगे आपको 5 मिनट्स पे कि आप पागल हो जाओगे। गलती से इसको ऑप्शंस में मत यूज करना, इट्स अ वेरी डिसीविंग टेक्निक। मैंने क्लियर कट बोल रहा हूं, डू नॉट यूज इट एन ऑप्शन, यू विल ओनली एंड अप बर्निंग योर हैंड वेरी बैडली। तो ऑप्शन के लिए देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ थिंग, जहां आपने अपने ऑप्शन बाइंग करनी। आई एम ट्राइंग टू मेक एन एल्गो ऑन इट। आउट ऑफ 7 टेक्निक्स 2 हैव ऑलरेडी डन इट, but unfortunately they are all Pawan sir's ideas, so I cannot share with you. So you can just go ahead and see it also. प्लीज अगर इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हो, बी रेडी फॉर ए बिग वेबसॉ। ये बड़ी बड़ी ये विक्स आती हैं, आप इसको कम से कम नहीं तो यू मस्ट लुक फॉर एट समवेयर अराउंड अबाउट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। डू नॉट ट्राई टू सी इट ऑन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम। अब आप 1 मिनट में देखो आपको कितने बड़े बड़े उसने डंडियां दिखा देनी दोनों तरफ। So don't try to do it. Even if you want to use Heikinashi, try to use it on a bigger time frame. अब यहाँ पे आपका बना, आप ऊपर जा सकते हो, अब आप इसको शैंडलियर लगा लो। इंट्राडे में आई विल ऑलवेज जस्ट मेक इट 10 टू, क्योंकि आपको थोड़ा सा ट्रेंड राइड करना आना चाहिए इसमें। एंट्री रिमेन्स द सेम, एग्जिट इज, अगर आप बीच में आ रहे हो ट्रेंड के, देन यू कैन टेक द ट्रेड, बट देन बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग ए ट्रेड इज। आपको अगर बीच में राइड करना है, देन यू नीड दिस इंडिकेटर टू एंटर, but entry conditions remains the same. It doesn't change in any form. So anybody who wants to do it in intraday, they can do it. This will help you to ride the trend very easily. It will help you to ride the trend. अब जैसे अब यहाँ पे आ जाता तो आप बंदा डर जाता कि मैं लूं ना लूं, बुलिश बना है, नीचे से ग्रीन है, चलो यार ले लो एक ट्रेड, रिस्क लेना है, ऊपर चले जाओ। यहाँ पे इंडिकेशन आया है, सेल कर दो, बैठे रहो बैठे रहो। अगर ये ग्रीन देखते बंदा आमतौर पे एग्जिट करने के बारे में सोचता है ना, वेट करो थोड़ा सा और जाने दो। गो बाय द रूल्स, इट विल गो अप लाइक दिस। आपको यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिला है कि मार्केट रिवर्स होएगा, डोजी नहीं मिली और उसका बुलिश नहीं आई है। यू कैन फाइन ट्यून इट टू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, हाउएवर यू वांट टू डू इट। सो आई एम ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Sir, good afternoon. I joined about 10 minutes late. So, what is the name of the indicator? That's all I want to know. Okay, sir. Thank you.
But just see it in anything you want to trade into. मैं बड़ा सिंपल बोलता हूँ, the easier you make it. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, I've been watching lot of videos today. ट्रिपल ईए में सुपर ट्रेंड, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, फिबोनाची लेवल्स, गैन फैन, ये सर्कल वो सर्कल, ये करना है. I say even trade by only one thing, you trade only by color. इसकी मुझे हरी नजर आ गई बुलिश, मैं बाय कर लूंगा. You will still end up making money. इंट्राडे में मैं इस टेक्निक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी डेंजरस टेक्निक. आपको ये कैंडल जो बोल रही है, ये ऑलमोस्ट मूव आपका पूरा हो चुका है. क्योंकि हाइकेनाशी में एक और भी बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द विक्स. विक कितनी बड़ी है, और विक का लेवल ही डिसाइड करता है. अगर 3 जगह एक विक बन के खत्म हो रही है, दैट मीन्स कि यहां से वो रिजेक्शन लेने के बहुत हाई चांसेस हैं. ब्रेकआउट हो तो इट कैन गो अप. बट मैं इस टेक्निक को सिर्फ किसी को अगर रिकमेंड करता हूं या मैं खुद यूज करता हूं, आई यूज इट ऑन ए पोजिशनल ट्रेड बेसिस. मैं करता बहुत कम हूं आजकल पोजिशन में, बहुत कम हूं, तो बहुत कम कर रहा हूं. मतलब मेरा पूरे महीने का मे नॉट बी इवन क्रॉसिंग 10 lakhs पोजिशनल ट्रेड्स में, बहुत कम है आजकल. आई एम ओनली डूइंग बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दैट्स इट. सो मैं इसको सिर्फ बैंक निफ्टी पे टेस्ट करता हूं और मैं बैंक निफ्टी में करता हूं. So, any more question anybody wants to ask? No, sir. For weekly and daily, you can use same settings. Sir, I never said it on candlestick, sir. Candlestick में आप you can use simple super trend ना, उसको super trend की तरह use कर लो, sir. आपको दे दिया ना उसने एरर. आपका तो बाई यहाँ पे है, आपका तो इंडिकेटर ऊपर खड़ा, सर. Don't use it. Don't try to bend the rules, sir. आप बेल्ट करोगे, आप बेंड हो जाओगे. एक्चुअली व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स, व्हाटएवर इज बीइंग. तो कोई चीज जो जैसे चलती है उसको वैसे ही यूज करो, वो बेस्ट होती है. सर मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया. ये सी सेटिंग क्या है सर इसकी? सर 10-2 है फॉर इंट्राडे, अगर कोई करना चाहता है. सी मतलब ये सुपर ट्रेंड है ना कि सुपर ट्रेंड ही आप शैंडलर एग्जिट है ना, इसका शैंडलर ये सुपर ट्रेंड के बेसिस पे चलता है. अगर ये देखो अब आपका है, अब आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में करो तो आपके एक तो नॉइज भी कम होगी. अब देखो किसी ने अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना चाहता है, डोजी एंट्री का यहां बाहर निकले सर आप 1828, आप घुसे कहाँ थे 1902 ने, चलो 1896, तब भी आप कितने दिन तो उसमें रह गए. यहाँ पे बाय का सिग्नल ही नहीं है. आपका बाय का सिग्नल यहाँ आ रहा है मेरे ख्याल से. स्विच ऑफ द इंडिकेटर. नो, ये भी बाय का सिग्नल नहीं है. ये मत करना कि आप बाय का सिग्नल आरवी पे लो, एग्जिट 15 मिनट्स पे करो, 15 मिनट में बाहर हो जाओगे सर आप. टाइम फ्रेम वो रखना, डोंट बेंड इट. देयर आर सो मेनी स्टॉक्स टू डू इट, यू कैन डू इट वेरी इजीली. मैंने रिलायंस में देखा था ऑन ए 4 अर्ली चार्ट पे पीछे, ये देखो रिलायंस में मैंने सेल में देखा था, सेल में आ गया. ये देखो जब रिलायंस सेल पे आ रहा था, कोई बाय का आपको इंडिकेशन नहीं है. There was a kind of a small doji and उसके बाद रिलायंस दौड़ा, but that was not a perfect entry. यहाँ देखो एंट्री, अब आप इसमें शैंडलर एग्जिट करो लगा, आप यहाँ निकलते हैं, यहाँ घुसने के बाद लॉस नहीं होना था. ये है एंट्री, यहाँ निकलते हैं आप. So you can do it. मैं अभी स्टॉक्स में नहीं बिल्कुल देख रहा, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन इट. मेरा स्टॉक्स में एंट्री का बहुत डिफरेंट तरीका है. मैं बहुत बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ आजकल, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मार्केट में रिवर्सल आना ही आना है.
there are some reasons which are little political also, I think it will be there. And feel good factor hai, we are heading for an election in around about 9 months or 10 months. So 2024 में election से पहले feel good factors बहुत बड़ा जो chunk है, that is 5 crores plus is the voter bank. If they feel good, 5 crore can change the scenario of any political party. And मेरे हिसाब से our government will make it sure that the market goes up for some time, because of good feel good factor लेके आएगा. I may be wrong, please correct me if I'm wrong. I'm very sorry अगर किसी का कोई sentiments hurt हो गया तो please forgive me. But मेरा अपना ये मानना है. So मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि अब मार्केट में रिवर्सल आएगा ही आएगा. मुझे बैंक निफ्टी ऊपर लग रही है. आप मानो या ना मानो, मेरा टारगेट तो ये है 43,000. So anybody wants to ask anyone? Sir, you can use it for stock entry. आप एंट्री ले सकते हो, पर एग्जिट फिर इसी बेसिस पे लेना है. आप ये नहीं कर सकते आप हाइकानाशी पे लेके आप फिर कैंडलस्टिक या लाइन चार्ट पे करता. डोंट डू इट लाइक दैट सर, फंस जाओगे बुरी तरह. ठीक है सर. सर इट विल नेवर गिव द रियल टाइम. आपने तो क्लोज ऑफ द डे पे देखना है ना सर. आपका वीकली की क्लोज तो 5 दिन बाद है ना. अब यहाँ पे अगर 2 days रिमेनिंग है, सो प्लीज डोंट ट्राई टू टेक इट कि मैं जल्दी एंट्री कर लेता हूँ. यू नेवर नो कि अगले 1 दिन बाद गंदी न्यूज है तो उसके नीचे विक बन जाए. So then the entry condition goes. So it's at the close. So you can do it somewhere around about 3 o'clock on the expiry day, on the month end basis. So you can do that way. So you let it go up like this. Sir, 5-1 है sir. ATR 5-1 है. You can use it as simple super trend also. आप नॉर्मल सुपर ट्रेंड भी यूज कर लो, ऑलमोस्ट सेम आपको लेवल्स दे देगा. कैंडल थोड़ा ज्यादा आपको रंग बिरंगा दे रहा है, ये थोड़ा ज्यादा आपको जल्दी ले आएगा सेल में. So you can use either way you want to use. You can use a moving average to do it. आप 20 moving average लगा के छोड़ दो, वो भी आपको ऐसे ही देगी एंट्री. तो एंट्री वो आपको एग्जिट भी ऐसे दे देगा. So anybody wants to ask anything? मैं तो हम खत्म करें आज का वेबिनार. वैसे थैंक यू शक्ति जी फॉर पॉइंटेड आउट दैट मिस्टेक. वो मिस्टेक है, तो अभी इसको फिर छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए टेस्टिंग के लिए. हाँ सर, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसमें, डेल्टा न्यूट्रल बनाने. तो देखो पेपर ट्रेड है, उसमें कोई डर नहीं है ना. अगर एक्चुअल देन इट वाज अ वरीसम फैक्टर. मैंने इसका एक एडवांस वर्जन भी बना दिया है, कल रात ही बनाया, पर उसको मैंने भी टेस्टिंग के लिए छोड़ा अपना. देखता हूँ क्या आता है उसमें. तो केतन सर वाले में बैंक निफ्टी में कोडिंग साइज आ गया उसका? नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया. मैं आज अपना ही काम कर रहा था, तो मैं उसमें बैठा हुआ था कंप्यूटर पे. तो मेरा अपना मानना है कि इफ यू आर मतलब कि देखो, those who are in professionals, they are working, they have to shift to algo if they want to go into option buying. Option selling still you can do if you, even if you are busy, because आपके पास मार्जिन होता है, आप दोनों तरफ का खेलते हो. बट ऑप्शन बाइंग वालों के लिए तो एल्गो से ज्यादा अच्छी चीज है नहीं. ना तो स्क्रीन पे आप मुंडी यहाँ पे हिली नहीं तो एक बड़ी कैंडल आई 100 पॉइंट का सारा प्रॉफिट खा जाएगी. Please do not use this technique on buying bank nifty in intraday under any circumstances, not even in options. Don't try to do it. ऑप्शंस में सबसे अच्छी टेक्निक जो भी फिर भी है, वो भी स्वामीनाथन सर ही कहते हैं कि रेड का हाई कटेगा तब आप ट्रेड लेना है. तो वो आपको वेट करना है. वो भी 15 मिनट्स पे कहते हैं. दैट इज अ परफेक्ट थिंग. इज 15 मिनट से नीचे आपने किया, आपका इतने स्टॉप लॉसेस हिट होंगे कि आप परेशान हो जाओ. मैंने ये बात देखी है. So try to follow a very simple way of trying to make it a very non-complicated kind of a trading for yourself. I have seen people जो 1 मिनट पे हाइकिनाशी पे काम कर रहे हैं. नमस्ते सर, अरुण सर. यस सर. सर वो वीकली सेटिंग से क्या रखा था सर आपने? 5-1 सर. 5 हफ्ते 5 दिन होते हैं ना एक वीक में.
तो मैंने तो एक वीक लेके चलना है, बस मेरा हिट हुआ तो मैं बाहर हुआ बस। सर यू हैव नहीं टू सर, बी इसमें सर फॉर सी में पीपल हु आर, हाँ जी सर, सी में सेटिंग रखे थे ना सर, वो C10 में और सेटिंग्स रखे थे सर। हाँ, इंडिकेटर में सर। कैंडलर एग्जिट, this is 23, this thing, make it 5, make it 1, close premium को बंद कर दो, आप यहाँ से ऐसे चलने दो। And if you want to remember it, make it a reset, make it a default settings and मेरा अपना मानना है कि बैंक निफ्टी इधर आएगी। I may be wrong sir, but मेरा बहुत strong conviction है इस बार मेरी। I have a very strong conviction regarding this. इसको फ्यूचर में ही करना है सर। सर ये लो फ्यूचर का चार्ट आ गया। I have a very strong conviction सर, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। और मैंने आज से अब एक चौथा 2 और स्टॉक्स ऐड कर रहा हूँ अपने लिस्ट में। मैं सबको बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ओनली लुक एट दीज 4 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे फॉर नेक्स्ट 1 month. These are going to be my 4 stocks for next 1 month. The Indigo is also going out, and I'm bringing in SBI. I'm very, I don't know, I'm very bullish on it. मैं बहुत bullish हूँ SBI पे। इसमें जो होना था अब हो चुका है। ये विक देखो सर, जो होना था सर इसमें हो गया। अब ये नहीं गिरेगा, अभी ऊपर उड़ेगा। ये इसका लेवल कटने की देर है बस। अगर कल 532 से ऊपर मिला तो स्टेट बैंक इज अ परफेक्ट बाय टिल दिस लेवल। ये मैं प्राइस एक्शन का फंडा बता रहा हूँ। मैंने हाइकेनाशी एंड नॉर्मल चार्ट को मिक्स करके बता दिया आपको हाउ आई ट्रेड इट समटाइम्स। Or sir, anybody wants to ask, do we have it? Sir, I am not very active on Telegram channel. I'm very inactive in my WhatsApp group now. What has started happening is, I'm not saying it, I appreciate some members do send me charts. I'm very sorry, I don't see them because I want to decluster my mind. मैं अपना दिमाग को बिल्कुल खाली रख रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का चार्ट देख के मेरा मन करता है कि मैं कुछ खरीदूं फिर, तो फिर मैं भटक जाता हूँ, तो I become very restless. So since I am concentrating only on Bank Nifty and the 4 stocks I have thinking of trading is, so I'm not seeing anybody's chart, so I don't comment also. I'm very happy Ashoka Saini ji sends so many good charts. अगर मैं उनकी success rate लेके चलूं तो 80% plus है, and we are very thankful and we are very lucky to have him in the group. So उनके आप टेक्निक जरूर देखें, उनके चार्ट में इंडिकेटर्स लगे होते हैं। प्लीज, ही आल्सो पुट्स अप द लॉजिक, so we must try to follow his logic also. He's, if I'm not wrong, he is using Trade Tiger, and which is a very good platform to do it, but it is expensive to buy it. It is as good as I think so 30,000 odd rupees. So वो आता है उसमें barring candles and all आता है, उसका शेयर खान का है, if I'm not wrong, please. So you can use any charting software. मेरा इसमें कुछ नहीं है। कोई आप, let me stop the recordings.